Ancient mountains draped in a shawl of white. Gurgling rivers, pure, playful and pristine. Time-worn valleys which hum the song of life. Enchanting. Endearing. Exciting. Devbhumi, the land of the gods. Network 18 and Federal Bank's vaccine awareness campaign against COVID-19, Sanjeevani, a shot of life, now in Himachal Pradesh. And we are here on the ground to see and understand firsthand how Himachal became India's first state to vaccinate 100% of its eligible population with the first dose of the COVID vaccine. सर बहुत ही दिक्कत आती है हमारे को ये वैक्सीनेशन के लिए स्पेशली. To get vaccinated in the plain area is something easier than in the hilly terrain. 5 से 6 फीट बर्फ यहाँ पर पड़ती है और टेम्परेचर्स यहाँ पर -25 तक कई बार चला जाता है. If the vaccine is frozen, the vaccine is not to be used. बीमारी नहीं है तो महामारी है दुनिया की. डरते रहेंगे तो रोज थोड़ा मरेंगे. Lahaul and Spiti, Himachal Pradesh's northernmost district, breathtakingly mesmerizing and bitterly cold. This is one of India's remotest regions, bordering Tibet, vast and sparsely populated, a district with just 32,000 people. The regional headquarters is at Keelong, one of the few semi-urban clusters. Otherwise, 90% of the people live in rural areas. Maybe it's a plain area, it's a mountainous area, it's such a hard area where no vegetation is there. In the rainy seasons, you can see a lot of landslides are there. It's very difficult for moving of people for vaccination, the mobilization of people, the mobilization of teams and vaccines. The biggest challenge in reaching the rural population, the backbreaking journey. The deadly roads, perilously narrow. On one side, the risk of skidding into the valley. On the other, the danger of rocks tumbling down the mountainside. A 75-kilometer journey health workers have to make. After 4 hours, we finally reached Tingrat village. The health department's team honored with a traditional welcome. And then immediately the auxiliary nurse midwives start the vaccination drive against COVID-19. शुरू में यहाँ के लोग नहीं जानते थे क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट सेवा नहीं मिलती है. लाइटें भी कई बार आती है जाती है. जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो लोग डर रहे थे सर शुरू में. कोरोना की वजह से भी बहुत डरते थे. यंग लोग तैयार थे. यंग लोग वैक्सीन करने के लिए तैयार थे, वैक्सीन लगवाने. तो आज की तारीख में सिचुएशन क्या है? सबको पहला डोज मिल गया है? यस सर, लगभग सभी ने यहाँ पे पहला डोज ले लिया है वैक्सीन. और सेकंड डोज कईयों के लग गए हैं, कईयों के लगने बाकी हैं अभी. ये लाहौल का वो हिस्सा है जो बहुत दुर्गम पड़ता है. यहाँ गाड़ियाँ भी आ पाना बहुत मुश्किल होता है. स्नोफॉल और रास्ते भी इतने अच्छे नहीं, कच्चे रास्ते हैं. तो स्ट्रैटेजी हमारी ये थी कि जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा हमारी टीम आएगी और उसके बाद हमने खुद कैरी करके भी 8-10 किलोमीटर, कभी 12 किलोमीटर हमारी टीम पीठ पर लेकर वैक्सीन आई है. लोग डर रहे थे जी वैक्सीन लगाने से. जैसे न्यूज़ वगैरह था ना जी, उसमें उन लोगों ने बताया कि लोग अगर इंजेक्शन लगाए तो डरते हैं, इससे मरते हैं बोल के. फिर हमने घर घर जाके बताया जी उनको, आप लोगों के फ़ायदे के लिए है, अगर इंजेक्शन लगाएंगे तो आप लोगों को कोविड नहीं होगा, इससे बचाव होगा. फिर काफ़ी लोगों को समझ आया जी, बाद में खुद ही आने लगे. कोरोना का बीमारी से थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए, हम लोगों को दूर होना चाहिए, इसलिए ज़रूरी है जी एक टीका लगाना. हमारे को बीमारी का डर था जी, यहाँ पहाड़ी जगह है जी. Nawang Upashak overlooking the Keelong Valley. He is a senior lama or priest in the Shashur monastery, the most important Buddhist Gompa in the region. His work during the pandemic would have gone unnoticed had not Prime Minister Narendra Modi lauded his efforts. नवांग उपासक जी
भगवान बुद्ध के संदेशों को जीवन में उतारने का एक प्रशंसनीय प्रयास आप जैसे महानुभाव कर रहे हैं। लोगों के जीवन को आसान बनाने के संकल्प में आपकी सहभागिता के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। It was in early 2021 that Nawang Upashak realized there was a need to create awareness about the vaccines. जब पहली बार यहाँ पे वैक्सीन आया था तो लोग खुल के घर से बाहर वैक्सीन के लिए नहीं आ रहे थे जी। लोगों में ऐसा खौफ था कि कहीं ये वैक्सीन लगाने से कहीं दूसरी बीमारी ना हो जाए जी। तो वो लोग घर से बहुत कम लोग जो पढ़े लिखे कुछ लोग थे वो लोग ही आगे आ रहे थे जी। तो इसमें ज़रूरी था कि एक जागरूकता फैलाए जी। तो आपने कैसा किया ये? तो हमने बीच में फिर लोगों ने अपने जो हमारे रीति रिवाज परंपरा के हिसाब से जो उन्होंने कहा कि जो भी बीमारी होती है वो मतलब पूजा पाठ से दूर होता है। तो लोगों ने हर घर में जितने भी अपने जो गुंबज हैं इस देवताओं को मनाना शुरू कर दिया कि भाई ये कोरोना महामारी जो है यहाँ से निकल जाए। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि इससे जो है महामारी जो बिल्कुल ही ख़त्म होगी। तो लोगों को मतलब एक जागरूक करने की ज़रूरत थी कि ताकि वो वैक्सीन लगाने के लिए आगे आए जी। Lamas hit the road, walking long distances, going door to door and spreading awareness on vaccinating against COVID-19. हम लोग जो भी गोम्बा के प्रमुख लामा लोग हैं उन्होंने हर गांव में अपना एक संदेश भेजा कि भाई इसके लिए हमको आगे आना पड़ेगा, इससे कोई बीमारी होने वाला नहीं है। तो लामाओं ने खुद आगे आके पहले उन्होंने अपना वैक्सीन लगाया, उसके बाद फिर लोग भी खुल के वैक्सीन लगाने आए। What also helped the Dalai Lama getting vaccinated, a video which went viral in the Buddhist community. In order to prevent some serious problem, this injection is very, very helpful. हमारे जो पूज्य दलाई लामा जी है उनको उन्होंने जब वैक्सीन लगाया तो हमें बहुत वैक्सीन लगाने के बाद हमें भी बहुत ही वो हुआ कि भाई हम भी लगा सकते हैं। तो उन्हें कुछ नहीं हुआ तो उनको देखा देखी में हम लोगों ने भी वैक्सीन लगाई जी। अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है सर। अगर अवेयरनेस ही करेंगे तो पीछे देखो जब शुरू में जब कोरोना वायरस जब आया तो लोग तो घरों से बाहर निकलने के लिए भी वो कर रहे थे, डर रहे थे कि भाई क्या हो जाएगा। वो तो सोच रहे थे कि कहीं मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं से भी आ सकता है कोरोना वायरस। इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है सर। Be it the chilly Himalayan winter, be it swaying wooden bridges, or be it trekking through thick layers of snow, nothing stops Lahaul's COVID-19 mobile health team. And today we join them in the remote village of Khanjar to see and understand their work during the pandemic. Especially Dr. Manoj Kumar Verma, the team's young leader. ये खंजर गांव है, लाहौल का लास्ट गांव है। यहाँ से आगे कांगला ग्लेशियर है जिसके बाद लद्दाख शुरू हो जाता है और ये तकरीबन 12,000 की फीट पे है। और यहाँ पर सर्दियों में और अभी भी आप देख सकते हैं 5 से 6 फीट बर्फ़ यहाँ पर पड़ती है और टेम्परेचर्स यहाँ पर -25 तक कई बार चला जाता है। तो हमने ऐसी सिचुएशन में जब टेस्टिंग करते हैं तो स्पिरिट जैसे यूज़ करते हैं सैनिटाइज़र के बदले, तो उससे हाथ सुन्न हो जाते हैं। While other team members vaccinate villagers, Dr. Manoj dons his protective gear to randomly test against COVID-19. जो टीम सारे यहाँ पे जो कोरोना टेस्ट वगैरह करा रहे हैं तो काफ़ी मतलब मुशक्क़त से यहाँ पे पहुँच रहे हैं, मतलब काफ़ी मतलब दिक्कतों का सामना करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी मतलब बेस्ट है। And nothing has stopped Dr. Verma from trekking in sub-zero temperatures to testing in heavy snowfall to carrying out over 100 awareness sessions. एक लाइन आएगा तो नेगेटिव, 2 आएगा तो पॉजिटिव, आधे घंटे का टाइम लगेगा। नाक से सैंपल लेंगे है ना, एक ही सैंपल लेते हैं। जब हम बर्फ़ में जाते थे 3-3 फुट बर्फ़ में भी हम गाड़ी में गए हैं चेन लगा के टायरों में, तो कई बार स्किट होने का डर रहता था तो हम ताकि पकड़ के रखते थे कि कभी भी स्किट हो सकती है। तो उन सिचुएशंस में भी हमने कोशिश की है कि पूरी घाटी सेफ रहे और लोग भी सेफ रहें। ऐसी परिस्थितियों में काम करना किसी चुनौती से कम नहीं रहता है। इसके बावजूद भी डॉक्टर मनोज कुमार की बात की जाए तो उन्होंने लाहौल के हर गांव में दस्तक दी, हर व्यक्ति तक पहुंचा है और कोविड सैंपलिंग को लेकर जो है इन्होंने बहुत जदोजहद की है। तो लाहौल घाटी में विषम परिस्थितियों के होने बावजूद तो इन्होंने लाहौल के हर गांव में जाकर सैंपलिंग की है। इस वक्त तक उन्होंने तकरीबन 15,000 के करीब लोगों के कोविड टेस्ट किए हैं। तो इनका कार्य सराहनीय है।
and then an on-the-spot vaccination. A labourer from Assam eager to protect himself against the virus. मैं आसाम से हूँ, हमारा पहला डोज आसाम में लगा था कोविड का। अभी हम यहाँ पे PWD का नया ब्रिज बना रहे हैं। यहाँ पे हम मैडम जी आए थे, नर्स मैडम, तो यहाँ पे 2 नंबर डोज लगा दिया मुझे। 5 kilometers ahead, the COVID-19 mobile health team halts once again. Her hands sanitized, the COVID vaccine loaded. And then, in freezing conditions, 2 Nepali citizens vaccinated, long after the sun has set over the snow-capped mountains. मेरा किस्मत था, हमारा किस्मत था जो स्वास्थ्य विभाग लोग आगे बस टीका उसको टीका दूसरा टीका भी लगा दिया। धन्यवाद चाहता हूँ मैं हम कोरोना से हम मुक्त हो गए। हम जो है वैक्सीन है 10 डोजेस होते हैं और हम उसको वेस्टेज नहीं कर सकते, इसलिए हम जो गाँव जाके पूछते रहते हैं लोगों से, अगर किसी का रह जाता है तो हम उनको वैक्सीनेट कर देते हैं। इससे हमारी जो वेस्टेज होती है बहुत कम होती है। तो मकसद है कि आपको टीके को वेस्ट नहीं करना है। हाँ जी। For his dedication and relentless service, he has won the hearts of the people. And for going beyond the call of duty, Dr. Manoj Kumar Verma is our Sanjeevani champion. सर मैं अपनी टीम और अपने आप को इसी तरह मोटिवेटेड रखता हूँ कि जो बीमारी 100 साल बाद आई है तो एफर्ट्स भी हमारे को 100 साल बाद वाले ही चाहिए। और वो शुरू में डरते भी थे, उनकी अपनी फैमिली थी, बच्चे थे, तो मैं यही कहता था कि डरते रहेंगे तो रोज़ थोड़ा थोड़ा मरेंगे। तो इसलिए जब तक हम स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो हम पूरा अपना डेडिकेशन देंगे और एरिया को सेफ रखेंगे, पब्लिक को। Himachal largely enjoys good roads, but in the interiors, roads to far-flung villages are in poor condition. So bad, our car gets stuck. It takes some maneuvering and some luck to get out. A journey health teams must take to vaccinate people against COVID-19. And then it's a steep descent into the valley. Jana village, among the remotest in Kulu district. The health department administers beneficiaries with the second dose. सर बहुत ही दिक्कत आती है हमारे को ये वैक्सीनेशन के लिए, स्पेशली क्योंकि ये सब सेंटर से टोटल 17 किलोमीटर तो बाय रोड हमें रन करना पड़ता है, उसके अलावा 2 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ता है। पहाड़ी रास्ता है, ऊपर से मतलब स्नोफॉल होता है तब तो ज़्यादा दिक्कत होता है, पैदल चल के आना पड़ता है। प्लेन्स में जो है पॉपुलेशन जो है वो एक थिकली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं, काफ़ी थिक पॉपुलेशन होती है, वहाँ पे अप्रोच भी बहुत इजी है। पर अगर हम हिमाचल प्रदेश का इस हिली टेरेन की बात करें तो जो हमारा टेरेन है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। वी हैव अ स्कैटर्ड पॉपुलेशन, एक घर कहीं और है, दूसरा कहीं और है। लोगों को चलने में, आने में, जाने में कई बार दिक्कत आती है, दोज हु आर फार फ्रॉम द रोड। सो पर मैं ये कहना चाहूँगा, टू गेट वैक्सीनेटेड इन द प्लेन एरिया इज समथिंग ईजियर देन इन द हिली टेरेन। Initially, the vaccination sessions were held on the main road, but the administration soon realized vaccine-eager citizens were being left out. सब सेंटर हमारा मतलब कि रोड हेड पे है और जो ओल्ड एज हैं मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मतलब कि क्योंकि सब सेंटर और गांव जो हमारा पड़ता है जाना विलेज, उसका डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो ओल्ड एज वो कवर नहीं हो पा रहे थे। तो इस करके हमने मतलब अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दिया। तो हमने मतलब कि उनके जो घर द्वार में वैक्सीनेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड कराया। And some villages so inaccessible, vaccines have to take a short flight. कई जगह जहाँ पे हमें स्पैन का यूज़ करना था वहाँ पे रास्ता नहीं है, तो टीम जो है पैदल जाती है। अब पैदल टीम वैक्सीन लॉजिस्टिक लेके जाएगी, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम टीम को पैदल भेज देते हैं और अपना जो लॉजिस्टिक्स है, जो वैक्सीन है, कैरियर्स हैं, जो सिरिंजेस हैं, उनको हम इसमें डाल के भेज देते हैं। तो ये फिर टॉप ऑफ द हिल पे हमारे जो दूसरे लोग बैठे होते हैं वो इसको पकड़ लेते हैं और टीम ऊपर पहुंच जाती है। एंड दिस इज द ओनली वे। या दिस इज द ओनली वे फॉर द वैक्सीनेशन। तो जो हार्ड टू रीच एरियाज में हमें पहुंचाना होता है वो यही वे है हमारे पास पहुंचाने के लिए।
Interestingly, COVID-appropriate behavior is voluntarily followed here, a place where there is no one to monitor or penalize. Right across Himachal, vaccine hesitancy is almost non-existent, unlike many other parts of North India. So, what makes Himachal so different? The literacy of the Himachal Pradesh is very good. Literacy of the Kullu is very good. आजकल तो दुनिया ही जेब में रखी हुई है लोगों ने, हर चीज़ की जानकारी जो है वो तो गूगल पर क्या नाम कर रहे हैं लोग, इतने सक्षम हैं कि मतलब 50% लोग तो गूगल को ही क्या नाम करके ले लेते हैं. और आप कह रहे थे कि लेना ही चाहिए कोविड का वैक्सीन. बिल्कुल, क्योंकि ये बीमारी नहीं है तो महामारी है दुनिया की. Yet vaccinating people in such arduous conditions impossible without the dedication of these young women. From river rafting to paragliding to hot air balloons, yes, the hills are alive with the sound of tourists. As the first snow showers hit the state, holidaymakers are back in Kullu district. आप कहाँ से आए हैं? गुजरात भावनगर. आपने कैसे तय किया यहाँ आने के लिए? ऐसे काफ़ी टाइम से प्लानिंग था. तो हिमाचल कैसे चूज किया? हिमाचल मनाली स्नोफॉल के लिए. A good indicator of footfalls increasing is more road in Manali. For most, business has improved. लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे मनाली में टूरिस्ट बहुत थोड़े कम थे, लेकिन इस साल धीरे धीरे टूरिस्ट में बढ़ोतरी हो रही है. सब टैक्सी ड्राइवर्स ऑपरेटर सब ने टीके ले लिए? हाँ जी, हाँ जी. वैसे मेरे हिसाब से तो बड़े हैं, लिटिल बिट बड़े हैं. जो नहीं अगस्त में जो थे वो कम थे, सितंबर में और आए हैं, अक्टूबर में और आए, हो सकता है नवंबर में और बढ़ जाए. कितने रूम है, कितने भरे हैं? अभी तो हमारा मैक्सिमम खाली है, 1-2 रूम लगे हैं. बाकी मेरे पास अभी ज़्यादा नहीं, 12 रूम है. While the sights refreshing in Manali, it's the swanky state-of-the-art Atal Tunnel that's now a major tourist attraction. One enters from Kullu district, and in 10 minutes, one emerges in a different world. Lahore Spiti, for honeymooners and offbeat travellers, the perfect escape. प्री प्लान कुछ नहीं था, एकदम से प्लान बना. एकदम से प्लान बना. सोचा विजिट कर लेते हैं. बार बार कौन सा इस साइड आना होगा, मनाली से नियर बाय था. अटल टनल तो देखना ही था. फिर आगे यहाँ का भी व्यू काफ़ी अच्छा है. আপনি কি ডু ইউ ফিল মোর সেফ হিয়ার? অ্যাবসলিউটলি, বিকজ কোথাও বেরোনোর আগে তো এই সেফটিটা দেখা দরকার আছে. অ্যান্ড এই কোভিড সিচুয়েশানে হিমাচলে যে এন্ট্রি যেটা করা হলো অনলাইনে, সেখানে ওরা যে ধরনের কোয়েশ্চেন্স ফিল করতে বললো সেটা করার পরে পুরো স্যাটিসফাই হয়ে দেন উই চুজ দিস প্লেস. Tourism has increased in the state, and now the government has even allowed the opening up of the schools also. You would say you are seeing the benefits of vaccinating much faster? Yes, definitely. These are the benefits from vaccinating much faster also, and the outside people, they have a confidence in our state that people are mostly vaccinated over here. 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर के सामने आया है. Indeed, when it comes to vaccinating against COVID-19, Himachal Pradesh has checked all boxes. So what are the state's best practices? What can we all learn from Himachal Pradesh? We had worked very hard in the tribal districts because of upcoming winters. We were planning that we have to finish the second dose over there. So the vaccine allocation at the state level was done towards this tribal districts. The vaccine was shifted as per their estimated requirements, and population was vaccinated at the earliest. As overall, talking about the state for pace of vaccination, our monitoring part is very strict on our side, because from the top end, maybe it's the Honorable Chief Minister or the Health Minister, at the level of Chief Secretary, they are monitoring it on a weekly basis. The updates are going with them, and they are reviewing it with all the deputy commissioners. With this, we had a help from other departments also for the mobilization of the beneficiaries who are due for vaccination. Last question to you. So I know every state is different, but if you had to, give a few tips as to what should every state be doing which is applicable there, what the best practices with Himachal has implemented, what would they be?
First of all, I would say you should have a good mechanism of monitoring the any program. Secondly, the support of the beneficiary. I mean the service takers. I would say that really depends a lot on them. There should be transparency. There should be transparency. You should not. You should tell them everything, that whatever it is there, and people accept it. जिला कुल्लू के अंदर जो आज ये जागरूकता मुहिम जो संजीवनी के द्वारा जो चलाई गई, और इसी कड़ी के तहत आप ज़िला के इंटीरियर गांव में भी जहां गए वहां पे आप लोगों ने काफ़ी अवेयरनेस भी की, और आपने स्वयं देखा भी है कि लोग बहुत ज़्यादा यहाँ जागरूक हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी अपना रहे हैं, और उसके साथ में फर्स्ट और सेकंड डोज जो वैक्सीनेशन है उसको सुचारू रूप से ले रहे हैं। तो मैं पुनः नेटवर्क 18 का और फेडरल बैंक का जो संजीवनी मुहिम चल रही है उनका आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना समय निकाला और आप हमारे मध्य आए।